آداب عرض ہے MCN اردو نیوز میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، میں ہوں قاضی محی الدین۔ خبریں تفصیل سے۔ اورنگ آباد امبارکیشن پوائنٹ سے سفر حج پر جون کے مہینے میں روانہ ہوئے 158 حاجیوں کا پہلا قافلہ آج وطن لوٹ آیا، جن کا ایئرپورٹ پر ان کے رشتہ داروں نے پرجوش استقبال کیا۔ واضح ہے کہ حج 2023 کے لیے اورنگ آباد امبارکیشن پوائنٹ سے لگ بھگ 1758 عازمین فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے جون مہینے میں مکہ معظمہ گئے تھے۔ حج کی ادائیگی کے بعد اب ان حاجیوں کی وطن واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ شیڈول کے مطابق مدینہ منورہ کے پرنس محمد عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اسپائس جیٹ کا طیارہ SG 5117 گزشتہ رات 10:30 بجے اڑان بھرنے والا تھا، مگر عین وقت پر شیڈول میں ترمیم کی گئی اور رات 1:30 بجے یعنی انڈین ٹائم کے مطابق 4:30 بجے یہ طیارہ 158 حاجیوں کو لے کر چکلتھانہ ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوا، جو 11:30 بجے صبح اورنگ آباد پہنچا۔ حاجیوں کے استقبال کے لیے چکلتھانہ ایئرپورٹ پر ان کے عزیز و اقارب جمع تھے۔ جیسے ہی امیگریشن اور کسٹم کی کارروائی مکمل ہونے کے بعد حاجی ایئرپورٹ سے باہر آئے، ان کے رشتہ داروں نے ان کا پرجوش استقبال کیا۔ حاجیوں کی رہنمائی اور ان کا سامان طیرانگاہ سے باہر لانے کے لیے خدمات حجاج کمیٹی کے اراکین اور دیگر نوجوانان اورنگ آباد ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد وطن واپسی پر سبھی حاجی بہت خوش نظر آئے۔ اس ضمن میں خدمات حجاج کمیٹی کے صدر مولانا نسیم الدین مفتاحی نے MCN کو تفصیلات فراہم کیں۔ میں خدمات حجاج کمیٹی کا صدر مولانا نسیم الدین مفتاحی ہے اور کاشف علوم کے سربراہ جناب الحاج اسلم خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم نے حاجیوں کا انٹرویو لیا، ان سے پوچھا کیسا سفر رہا، تو اکثریت نے بتایا کہ بہت سہولت رہی ہے، اور خاص طور سے کاشف علوم جامع مسجد میں جو تربیت کا انتظام ہوتا ہے، حاجیوں کو مناسک سکھلاتے ہیں، اس سے بہت فائدہ ہوا ہے۔ اور 1-2 واقعات ایسے ہوئے ہیں جس سے حاجیوں کو تکلیف ہوئی ہے، لیکن وہ اتنے بڑے جو 25-30 لاکھ کے مجمع میں اتنی تکلیف ہونا یہ ممکن ہے۔ ہم خدمات حجاج کمیٹی ان کو بمبئی ایئرپورٹ سے بھیجیں گے، 88,000 روپے کیوں زائد ہمارے ایک حاجی کے خرچ کریں گے، اور گورنمنٹ سے درخواست کریں گے کہ امبارکیشن باقی رکھے لیکن 88,000 نہ لے، پہلے جیسا 22-25,000 لے لے تو دونوں کو سہولت ہوگی۔ اسی طرح ہمارے نمائندوں نے جب حاجیوں سے بات کی تو انہوں نے سعودی حکومت کی جانب سے حاجیوں کے لیے کیے گئے انتظامات پر اپنے تاثرات پیش کیے۔ مزدلفہ میں شکایت یہ ہے کہ پانی نہیں تھا وہاں پر، اس کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ مزدلفہ میں پانی نہیں رہنے سے بہت تکلیف ہوئی۔ باقی جو ہے تو یہاں سے بھی بہت خدمت کی، اور اس میں عزیزیہ میں بھی بہت اچھا انتظام رہا، اور لوگوں نے وہاں پر بھی بہت خدمت کی۔ ہم کو تو ایک سامان اٹھانا ہی نہیں پڑا آنے تک بھی، ابھی تک کے بھی۔ لیکن مزدلفہ میں پانی کی، اور جو ہوٹل ہے ہماری کون سی تھی گولڈ، تو اس میں جو ہے تو اس کا بہت پرابلم ہوا لفٹ کے، باقی سب بہت اچھا۔ ہم لوگ حج 2023 کمپلیٹ کیے اور ہمارا امبارکیشن پوائنٹ اورنگ آباد تھا۔ الحمدللہ حج کے انتظام کافی اچھے تھے، اور الحمدللہ ہمارا حج کافی اچھے سے ہوا ہے۔ بہت اچھا رہا، ہم نے سوچے تو اس سے اچھا ہوا۔ نہیں، مدینہ میں ہمارا اکوموڈیشن قریب تھا کافی حرم سے، اور مکے میں بھی عزیزیہ میں اچھا بسیز وغیرہ کا انتظام تھا آنے جانے کا۔ صرف مزدلفہ میں تھوڑا سا سہولت نہیں تھی، پانی نہیں تھا باتھ روم وغیرہ میں، بس اتنا ہی، باقی تو سب اچھا تھا الحمدللہ۔ بجلی سپلائی کمپنی کو سب سینٹرز قائم کرنے کے لیے جگہ نہ مل پانے کے سبب 590 کروڑ روپیوں کے کام التوا میں پڑے ہیں۔ یہ اطلاع متعلقہ افسران نے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر بھاگوت کراڑ کو دی۔ واضح ہے کہ مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر بھاگوت کراڑ نے گزشتہ روز شہر و ضلع میں چلائی جانے والی مختلف اسکیمات کے تحت کیے جا رہے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لینے کے لیے سبھی سرکاری محکموں کے افسران کی ایک مشترکہ میٹنگ اسمارٹ سٹی کے دفتر میں طلب کی تھی۔ اس موقع پر بجلی سپلائی کمپنی کے افسران نے انہیں بتایا کہ مرکزی حکومت نے اورنگ آباد ضلع میں بجلی سپلائی کے کاموں میں بہتری لانے کے لیے 1220 کروڑ روپیوں کا فنڈ فراہم کیا ہے، جس میں سے 590 کروڑ روپیوں کا فنڈ میونسپل حدود میں استعمال کرنا ہے، جس کے تحت شہر کے وہ علاقے جہاں بجلی سپلائی میں
रुकावट आ रही है वहां सब सेंटर्स कायम करने का मंसूबा है, जिसके लिए गुज़िश्ता कई माह से वो लोग जगह की तलाश में हैं। कुछ मकामात पर जगह मिल जाने का इम्कान भी है, लेकिन जिन सरकारी महकमों के इख्तियार में ये जगह है उनकी जानिब से ज़मीन हासिल करने के लिए उन्हें दुश्वारियों का सामना है, जिनमें एएमसी की मिल्कियत की 5 अराजियात और औरंगपुरा में वाक़ ज़िला परिषद ग्राउंड का शुमार है। इसके अलावा 7 हिल्स पर मौजूद इरिगेशन डिपार्टमेंट की 1.5 एकड़ ज़मीन के लिए भी मुतालिबा किया गया है, जिनमें एएमसी इंतज़ामिया ने 3 मकामात की जगह देने के लिए रजामंदी का इजहार किया है और 2 जगहों के लिए मज़ीद परसुएशन जारी है, जबकि इरिगेशन महकमे के ज़िम्मेदारान ने जगह फराहम करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है, जिस पर वज़ीर ममलकत ने यह हिदायत दी कि गारखेड़ा इलाके से बिजली की आंख मुचोली की शिकायतों में आए दिन इजाफा हो रहा है, लिहाजा फौरी तौर पर इन कामों को शुरू किया जाए। भाजपाई लीडर किरीट सोमैया की एक मुबैना वीडियो वायरल हो जाने के बाद शिवसेना उद्धव ग्रुप की खवातीन इकाई की जानिब से आज क्रांति चौक पर जोरदार एहतजाज किया गया। इस मुजाहरे में उद्धव ग्रुप की खवातीन ने सुमैया को आईना दिखाते हुए उनकी मजम्मत की। वाज़ेह रहे कि रियासत में बड़े नेताओं के मुबैना घोटाले मंजर आम पर लाने वाला किरीट सोमैया का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसी तरह उसकी मजम्मत में रियासत भर मुख्तलिफ मकामात पर आंदोलन और मुजाहरे हो रहे हैं। शहर में भी क्रांति चौक पर शिवसेना उद्धव ग्रुप की खवातीन इकाई की जानिब से एक आंदोलन किया गया। मुजाहरा कर रही खवातीन ने किरीट सोमैया को अलामती तौर पर आईना दिखाते हुए उनकी शदीद मजम्मत की और ज़ोरदार नारेबाजी की। इस आंदोलन को आरसा बघा आंदोलन का नाम दिया गया। मुजाहरे में कसीर तादाद खवातीन, ओहदेदारान व कारकुनान शामिल थीं। आज हे आंदोलन किरीट सोमय्याच्या विरोधात आम्ही करत आहोत। ज्या प्रकारे काल जो व्हिडिओ व्हायरल झालेला आहे त्या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून त्यांना योग्य प्रकारे दंडित करण्यात यावं। मला असं वाटतं ज्या पद्धतीने जो हा व्हिडिओ व्हायरल झालेला आहे हा सामान्य लोकांना बघायला सुद्धा किळस वाटते। अशा प्रकारचा व्हिडिओ हा व्हायरल झालेला आहे। जर नेते भाजपचे अशा प्रकारे महिलांना बदनाम करत असतील किंवा स्वतःची प्रतिमा मलिन करत असतील तर मला असं वाटतं की याच्यामध्ये नेत्यांचं वर्तन हे जनतेने स्वीकारलं पाहिजे का? जर नेते अशा प्रकारची वागणूक करत असतील तर जनतेने यांच्यापासून काय बोध घ्यावा? जर भाजप सरकारना असे नेते चालत असतील ज्यांनी ईडी लावून दुसऱ्या पक्षातले लोक आपल्या पक्षात आणण्याचा प्रयत्न चालवलेला आहे, मला असं वाटतं लोक तयार करायला हे वर्षानुवर्ष लागत असतात आणि ज्यावेळी लोक आपले प्रतिनिधी तयार करत असतात आयते वैते प्रतिनिधी हे आपल्याकडे घेतात, त्यांना ईडीचा धाक दाखवतात। आता त्यांची सगळी घटका भरत आलेली आहे। सोमय्याचा सगळा पापाचा घडा भरलेला आहे आणि मला असं वाटतं किरीट सोमय्याला पक्षातून बेदखल करण्यात यावं ही आमची शिवसेना महिला आघाडीची मागणी आहे। किरीट सोमैया के खवातीन से मुताल्लिक़ हतक आमेज बयान का वीडियो वायरल हो जाने के बाद ज़िला नांदेड़ में भी शिवसेना उद्धव ग्रुप की जानिब से ज़ोरदार एहतजाज किया गया और सोमैया की फर्जी तस्वीर पर जूते बरसाए गए। भाजपाई लीडर के इस काबिल एतराज़ वीडियो पर महाराष्ट्र भर में वबाल मचा हुआ है और मजम्मती मुजाहरे जारी हैं। नांदेड़ के महात्मा फुले चौक पर मुश्तइल मर्द ख़वातीन व कारकुनान ने भरी बरसात में शदीद मजम्मती मुजाहरा किया और फलक शिगाफ नारेबाजी की। वाज़ेह रहे कि दीगर लोगों और रहनुमाओं के घोटाले सामने लाने वाले सुमैया खुद ही अब अपने इस वीडियो के ज़रिए तनाज़ात में घिर गए हैं और उनके इस वीडियो के सबब रियासत भर उनकी मजम्मत की जा रही है। नांदेड़ के इस मुजाहरे में बड़ी तादाद में शिवसेना उद्धव ग्रुप के मर्द ख़वातीन, कारकुनान व ओहदेदारान शामिल हुए। आज किरीट सोमय्या यांच्या घाणेरड्या वक्तव्याबद्दल नांदेडच्या उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसैनिकांच्या वतीने जाहीर निषेध करत आहे। हा भाजप पक्षासाठी कलंक आहे की चांगला आहे? भाजप पक्षाने ठरवायला पाहिजे हिंदुत्ववादी म्हणून एकनाथजी शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजितदादा पवार यांच्यावर काय म्हणजे विचार करतील आणि ह्यांचा काय मार्ग मोकळा करतील हे त्यांना आता सगळं महाराष्ट्राचं लक्ष लागलेलं आहे। लोकांवर केसेस करणारे, लोकांच्या घरं उठवणारे, लोकांना जेलला पाठवणारे, लोकांच्या घरावर हातोडे नेणाऱ्या किरीट सोमय्यांचे आज जे व्हायरल जे क्लिप झालेत ते महाराष्ट्रासाठीच नाही तर देशासाठी लाजिरवाणे आहेत आणि हा माणूस भाजपसाठी कलंक आहे। आता किती हिंदुत्ववादी ह्यांचं जागृत होते हे बघायची वेळ महाराष्ट्राला आलेली आहे। जिला नांदेड़ के मज़ाफ़ात में गांव के गुंडे ने कमसिन दोशीज़ा के साथ जिनसी हैवानियत की और फिर उसे कुएं में फेंक दिया।
इस वारदात की मजम्मत में ताल्लुका पैठन में कसार समाज की जानिब से मोर्चा निकाला गया और इस हैवान सिफत गुंडे के खिलाफ पोक्सो के तहत कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया। तफसीलात के मुताबिक ज़िला नांदेड़ के मुदखेड़ ताल्लुक़े के मज़ाफ़ती गांव रेणुघा की 17 साल कमसिन तालिबा सपना सतीश पेदे के साथ गांव ही के मुलजिम ज्ञानेश्वर उर्फ सोनिया ने जिनसी दरिंदगी की और फिर उसे कुएं में फेंक दिया था। चूँकि मुतासरा लड़की क़ानूनी तौर पर कमसिन थी, इसलिए मुलजिम पर बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल के क़ानून पोक्सो के तहत कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए पैठन में ताल्लुका कासार समाज की जानिब से तहसीलदार के दफ्तर पर एक मोर्चा ले जाया गया और तहसीलदार सारंग चौहान को एक मजम्मती व मुतालबाती मकतूब पेश किया गया, जिसमें मुलजिम को फांसी की सज़ा देने का मुतालबा किया गया। इस मोर्चे में कासार समाज के अफराद कसीर तादाद में शरीक हुए। प्रकार झालेला आहे, मुलीवर अन्याय झालेला आहे, त्या आरोपीला कडक कारवाई करून त्याला फाशीची शिक्षा व्हावी अशी आमच्या सर्व महिलातर्फे विनंती आहे। आरोपीला फाशी झालीच पाहिजे, आरोपीला फाशी झालीच पाहिजे। पैठण तालुका कासार समाज बांधवांनी तहसील कार्यालय पैठण येथे सन्माननीय तहसीलदार साहेब यांना आज आपण नांदेड जिल्ह्यातल्या निवघा तालुका मुदखेड जिल्हा नांदेड येथील गावगुंड आरोपी ज्ञानेश्वर पवार याच्यावर पोस्को बाल लैंगिक अत्याचार कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची आपण मागणी केली आहे शासनाकडे। आपल्या भावना सन्माननीय तहसीलदार साहेब हे माननीय नामदार देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री महाराष्ट्र राज्य मुंबई यांना आपल्या भावना कळवणार आहेत। आपली जी मागणी आहे, आज महाराष्ट्रामध्ये कासार समाजाच्या ग्रामीण भागामध्ये असलेले जी घरं आहेत, कासार समाजाचा जो व्यवसाय आहे बांगडी भांडीचा, गावामध्ये प्रत्येक ठिकाणी 1 या 2 घरं असतात, त्यांच्यावरती गावगुंडांनी जे आत्तापर्यंत जिथे ज्या गावात अत्याचार केलेले आहेत ते आत्तापर्यंत सहन केले। इथून पुढं पैठण तालुका कासार समाज असेल, महाराष्ट्र कासार समाज असेल, अशा कुठल्याही घटनेला बळी पडणार नाही। इथून पुढे जी घटना निवघा येथे झालेली आहे त्या समाज बांधवाच्या पाठीशी महाराष्ट्रातील संपूर्ण कासार समाज एकजुटीने उभा राहिलेला आहे। आज पैठण तालुका कासार समाज ही जे आज आपण जमलोत, आज आपणही त्या कुटुंबाच्या पाठीशी भरभक्कमपणे उभे राहणार आहोत। इथून पुढे त्या जो आरोपी आहे त्याच्यावरती पोस्को अंतर्गत कारवाई व्हावी अशी आपण मागणी केली आहे। गुज़िश्ता दिनों स्वीडन में आसमानी किताब कुरान करीम का एक नुस्खा जलाए जाने का शर्मनाक वाक़या मंजर आम पर आया, जिसकी मजम्मत में मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की जानिब से एक मेमोरेंडम सदर जमहूरिया हिंद के नाम इलाकाई कमिश्नर के सुपुर्द किया गया। वफ़द में शामिल अफराद ने बताया कि उन्होंने इस मेमोरेंडम के जरिए सदर जमहूरिया से मुतालबा किया है स्वीडन एम्बेसी के जिम्मेदारान को तलब करके इस वाक़े की मजम्मत की जाए और उनसे ये बात की जाए कि मुस्तक़बिल में ऐसा कोई वाक़या दोबारा से वहाँ पेश न आने पाए जिससे किसी भी मजहब के मानने वालों की दिल आज़ारी होती हो। इस वक्त में एडवोकेट सैयद फैज़, इलियास किरमानी, जावेद कुरैशी, मुश्ताक अहमद, आदिल मजनी, मिर्ज़ा असलम बेग, अब्दुल मोईद हशर और मेराज सिद्दीकी भी शामिल थे। आज जो है मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की तरफ से यहाँ काउंसिल के तमाम लोग जमा हुए और भी तंजीमें इसमें शामिल हुई। मकसद ये था कि डिवीज़नल कमिश्नरेट के थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक जो है एक मेमोरेंडम पेश किया जाए, जिसके अंदर स्वीडन के अंदर जो कुरान को जलाया गया उसके अगेंस्ट जो हमने लिखा, और हम चाहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट जो है इनके एम्बेसडर्स को समन करे, उनको बुलाए और उनसे बात करे कि आइंदा ऐसी कोई चीज़, ऐसी हरकत ना हो कि कुरान को या किसी धार्मिक ग्रंथ को जो है जलाया जाए। हम ये भी अपील की है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है इस पर जो है ध्यान दे, और अगर ये लोग इस हरकत से बाज ना आए तो उनसे डिप्लोमेटिक टाइज भी तोड़ने की जो है बात की जाए, ताकि उन पर एक प्रेशर है, ताकि ऐसी हरकत जो आइंदा जो है ना हो। इसलिए कि कुरान एक मुक़द्दस किताब है और मुसलमान इस मामले में बहुत सेंसिटिव है। अगर इस तरह से कोई इसको जलाएंगा तो ज़ाहिर सी बात है इससे डिसहार्मोनी होंगी, इससे नफ़रतें फैलेंगी, पीस डिस्टर्ब होंगी। तो हम चाहते हैं ऐसी हरकत कोई भी ना करे देश के, या हमारे देश में या किसी भी जगह ये चीज़ ना हो। और जो स्वीडन में जो कुरान जलाने का जो वाक़या हुआ, ये मुसलमानों को तकलीफ़ देने का, ज़हनी तकलीफ़ देने का ये जो काम हो रहा है, ये जानबूझ के जो इंटरनेशनल तरीक़े से मुसलमानों को नीचे गिराने की कोशिश कर रही है, उसका हम निषेध करने के लिए यहाँ जमा हुए। और ये चीज़ दोबारा नहीं होना, इंडियन गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि वहाँ के राजदूत को बुलाकर
उनको समझाए या नहीं तो फिर उनसे ताल्लुक़ात बंद करे, ये हमारी अपील है। ये सारे दुनिया के मुसलमानों के मामला है, ये कुछ एक जगह का नहीं है। तो किसी हाल में हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसके नतायज गलत होंगे, ये भी हम चेतावनी दे रहे हैं। इत्तला है कि म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने नागरी मित्र पथक में शामिल साबिक फौजियों का कमीशन ख़त्म करके उनकी तनख्वाहों में इजाफा करने की हिदायत मुतल्लिका इंतज़ामिया को दी है। वाज़ेह है कि प्लास्टिक बंदी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के अलावा शहर को साफ सुथरा रखने में रुकावट डालने वाले शहरियान पर शिकंजा कसने की जिम्मेदारी एएमसी इंतज़ामिया ने नागरी मित्र पथक में शामिल साबिक फौजियों को दी थी, जिन्हें तनख्वाह के साथ साथ उनकी जानिब से वसूल किए जाने वाले जुर्माने में से कमीशन भी अदा किया जाता रहा। मगर इंतज़ामिया को बड़े पैमाने पर ये शिकायतें मिलने लगी कि नागरी मित्र पथक में शामिल मुलाजमीन ज़ायद कमीशन हासिल करने के चक्कर में आवाम को बेजा हिरासा करके उनसे बेहिसाब जुर्माना वसूल कर रहे हैं और इस बात को लेकर इन मुलाजमीन और आवाम के दरमियान अक्सर लफ्जी झड़प होती रहती है। इस संगीन मसले पर संजीदगी से गौर करने के बाद म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत ने इसका हल ये निकाला कि उनका कमीशन ख़त्म कर दिया जाए और उनकी तनख्वाहों में इजाफा कर दिया जाए। उन्होंने नागरी मित्र पथक के मुलाजमीन को ये भी हिदायत दी कि अब वो दोबारा से पूरी ताकत के साथ काम शुरू करें। पिछले कई बरस के बिल रुक जाने के बाद मुश्तइल सरकारी रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर्स ने जंजीरी हड़ताल शुरू की। इन कॉन्ट्रैक्टर्स का कहना है कि रियासती हुकूमत के लापरवाही के तर्ज़कार के सबब तामीरात आम्मा के ठेकेदार मुश्किल में पड़ गए हैं। उन्हें पिछले कई बरस के रुके हुए उनके बिल नहीं दिए गए। इन मामलात के सबब उन कॉन्ट्रैक्टर्स की तंजीम बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की जानिब से शहर के तामीरात आम्मा बोर्ड के सामने ये जंजीरी भूख हड़ताल शुरू की गई है और हुकूमत व मुताल्लिका इंतज़ामिया से मतालबा किया गया है कि उनके तवालत में पड़े बिल फौरी अदा किए जाएँ। आम्ही दरवर्षी म्हणजे दर महिन्याला सुद्धा काही सी साहेबांना निवेदन दिलेले आहे की आमची देयक देण्यात यावं। आमचे देयक हे 3-4 वर्षापासून बाकी आहे। आम्हाला दर क्वार्टरला 3 म्हणजे 10% पैसे येते। समजून घ्या 7,000 करोड रुपये कधी हे असेल वर्षाला बजेट, तर आज आमच्या पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये 13,000 कोटी रुपये देणं बाकी आहे बांधकाम विभागाची। दुसरी गोष्ट अशी आहे की दरवेळेस टेंडर नवीन काढले जात आहेत की जे त्याला बजेट नसतं काही नसतं आणि त्याच्यानंतर तीही देयक मागचं नाही दिलं जातं आणि पुढची लायबिलिटी वाढवून ठेवत आहेत। नाही, पूर्ण महाराष्ट्रात प्रश्न कशासाठी संबंध पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आंदोलन चालू आहे। सगळ्या सर्कलला आपल्याला वाटलं तर तुम्ही पूर्ण तुमच्या मित्रमंडळाकडून माहिती घेऊ शकतात की पत्रकार बंधूंना भी सगळ्या पेपरमध्ये येत आहे। पूर्ण महाराष्ट्र भेटलं आहे, म्हणजे चांद्यापासून बांद्यापर्यंत सगळीकडे स्ट्राइक चालू आहे। अपेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के 21वें यौम तासीस पर अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से ज़रूरतमंद मरीज़ों के लिए एक ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया, जिसमें अस्पताल के स्टाफ मेंबरान और मरीज़ों के रिश्तेदारों के अलावा दीगर शहरियान ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। नाजरीन, हमारे शहर में हर तरह की तिब्बी सहूलतें मिलने के सबब औरंगाबाद का नाम मेडिकल हब के नाम से भी जाना जाता है और हमारे शहर में मौजूद गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल यानी घाटी, MGM, हेडगेवार हॉस्पिटल, कमल नयन बजाज और धूत हॉस्पिटल के अलावा दीगर कई खानगी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स भी मौजूद हैं, जिनमें से एक अहम नाम अपेक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। ये हॉस्पिटल आज से 21 साल पहले माहिर न्यूरोसर्जन डॉक्टर भावना टाकलकर और माहिर न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर अब्दुल माजिद की रहनुमाई में शुरू किया गया। यहाँ के माहिर डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ की मेहनत और जानफशानी के सबब देखते ही देखते न सिर्फ शहर औरंगाबाद बल्कि इलाक़े मराठवाड़ा समेत रियासत महाराष्ट्र में भी ये हॉस्पिटल काफ़ी मशहूर हो गया और रोज़ाना सैकड़ों मरीज़ इलाज की गर्ज से यहाँ लाए जाने लगे और कामयाब इलाज के बाद सेहतयाब भी हो गए। आज अस्पताल का 21वां यौम तासीस था, लिहाजा इस मौके पर अस्पताल इंतज़ामिया की जानिब से ज़रूरतमंद मरीज़ों के लिए एक ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद किया गया, जिसमें
हॉस्पिटल के स्टाफ के अलावा यहाँ जेर इलाज मरीजों के रिश्तेदारों और दीगर शहरियान ने भी अपने खून का अतिया जमा करवाया। इस मौके पर डॉक्टर भावना टाकलकर, डॉक्टर अब्दुल माजिद, डॉक्टर आशीष काथाले, डॉक्टर नहुष पटेल और दीगर डॉक्टर्स व अस्पताल इंतज़ामिया के खैर-ख्वाह भी मौजूद थे। हम MCN न्यूज़ की जानिब से अस्पताल इंतज़ामिया को 21वें यौम तासीस पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। 18 जुलै 2002 रोजी सुरू केलेलं हे अपेक्स हॉस्पिटल छोट्याशा रेंटेड प्लेसमधनं आज 100 बेडचं हॉस्पिटल झालं आहे। हे हॉस्पिटल गेल्या 21 वर्षापासून सातत्याने न्यूरोलॉजी, ॲक्सिडेंट, पॅरालिसिस, चेहऱ्याचे विकार व ICU क्रिटिकल केअर याच्यासाठी फेमस आहे या रिजनमध्ये। मराठवाडा, विदर्भ, आजूबाजूच्या स्टेट्समधनं इथे पेशंट्स येतात आणि आम्हाला आनंद होतो की वर्षाकाठी आम्ही साधारणतः 1,500 ते 2,000 ऑपरेशन्स मेंदूचे करतो, 1,500 ते 2,000 चेहऱ्याचे करतो आणि ICUमध्ये आमच्याकडे कमीत कमी 10,000चे टर्नओव्हर वर्षाचा असतो, ज्याच्यामध्ये पेशंट्स विविध आजारांनी येतात आणि ते चांगले होऊन जातात। पॅरालिसिसमध्ये यावर्षी डॉक्टर अभिनंदन जॉईन झाले आणि यावर्षी डॉक्टर शैलेंद्र लेंडे म्हणून एक न्यूरो रिहॅबिलिटेशन सेंटरसुद्धा आम्ही सुरू केलेलं आहे। म्हणजे न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी आणि ॲक्सिडेंटसाठी लागणारं CT स्कॅन, MRI, पॅथॉलॉजी लॅब, फिजिओथेरपी, डाएट असे सर्व विभाग आहे, ज्यामुळे सर्व पेशंट्सला पूर्ण ट्रीटमेंट आणि रिहॅबिलिटेशनपर्यंत आपण पूर्ववत कामावर जावं यासाठी प्रयत्न करतो। ब्रेन सर्जरी साधारणतः पूर्वी होत नव्हत्या इथे, ज्या आम्ही 2001 साली 2 सालीपासून सुरू केलेल्या आहेत आणि सर्व कॉम्प्लिकेटेड ब्रेनचे ट्युमर्स आम्ही ते ऑपरेट करतो। तसेच चेहऱ्याचे, जबड्याचे कॅन्सर्स जे पूर्वी इथे होत नव्हते ते सुद्धा सातत्याने आठवड्याकाठी आमच्याकडे 3 ते 4 ऑपरेशन्स कॅन्सरचे होतात आणि ICUसाठी अगदी क्रिटिकल केअरचे होतात। तसेच आमच्याकडे कोविडमध्ये डॉक्टर आशिष कटाळे, डॉक्टर नहुष पटेल यांनी सातत्याने खूप चांगलं काम करून खूप कोविड पेशंट्सला नवीन जीवदान दिलेलं आहे। ओके, आपलं नाव मॅडम? मी डॉक्टर भावना टाकलकर। महाराष्ट्र मराठी प्राइमरी व सेकेंडरी स्कूल वालुज के तलबा व तालिबात की रहनुमाई के लिए दामनी पथक की जानिब से एक वर्कशॉप रखा गया। मौजूदा मखदूश हालात और स्कूल की तालिबात व तलबा को हिफाजत खुद इख्तियारी और अपने बचाव व एहतियाती तदाबीर से मुताल्लिक़ मौसर व मुफीद रहनुमाई के इस प्रोग्राम को संस्था के सदर और BJP अक़लियती मोर्चा के रियासती नायब सदर नबी पटेल की रहनुमाई हासिल थी, जबकि इस प्रोग्राम की सदारत स्कूल के सदर मुदर्रिस अफसर पटेल ने की। मेहमानान खुसूसी और तालिबात की रहनुमाई करने वाले दामिनी स्क्वाड में खातून पुलिस नायक निर्मला अंभोरे, रूपा साखला, आर्दवाड़ पुलिस अमलदार मनीषा बंसोड़े शामिल थीं। दामिनी स्क्वाड ने तालिबात व तलबा को रहनुमाई की कि अगर कोई अनहोनी का मरहला दरपेश हो या उनके साथ कुछ ज़्यादती का मामला पेश आए तो कैसे मुकाबला करें और किस किस्म की हिकमत व तरीक़ा अपनाएं। इस प्रोग्राम की कामयाबी के लिए स्कूल के तमाम मुदर्रिसीन व मुअल्लिमात उकिरडे, रविंद्र, अनीस शेख, ताजुद्दीन शेख मौजूद थे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली के खंभों पर डाले गए कमोबेश 12,000 मीटर वायर्स म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के गैरकानूनी कब्जात हटाओ दस्ते ने निकाल लिए। ये कार्रवाई गुज़िश्ता रोज़ अंजाम दी गई। मज़कूरा कार्रवाई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मज़कूरा दस्ते और बिजली शोबे के अमलों के इश्तराक से की गई। ये केबल कटिंग मुहिम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बिजली खंभों और दरख्तों और कॉरपोरेशन की दीगर इमारतों पर से डाले गए केबल वायर, इंटरनेट कनेक्शन के वायर और रिलायंस व जियो के गैर मजाज तरीके से डाले गए केबल व वायर्स के खिलाफ म्यूनसिपल कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत के हुक्म पर की गई है। गुज़िश्ता रोज़ सुबह ही से शहर के जोन नंबर 1 ता 6 में ये कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। केबल कटिंग की मुहिम के तहत ये कार्रवाई इलाक़ाजात टीवी सेंटर चौक ता डी मार्ट, नौजवान कॉलोनी, सुदर्शन नगर, गजानन नगर ता सौभाग्य चौक से आगे एम्स हॉस्पिटल, प्यासा वाइन शॉप तक की गई, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर जी श्रीकांत की हिदायत और रहनुमाई पर एडिशनल कमिश्नर सौरभ जोशी, अतिक्रमण डिप्टी कमिश्नर सविता सोनोने, शोबा बिजली की डिप्टी इंजीनियर मोहिनी गायकवाड़, बिजली व अतिक्रमण हटाओ शोबे के मुलाजमीन और अफसरान ने हिस्सा लिया। लोक शाहिर अन्नाभाऊ साठे की बरसी पर ज़िला व शहर कांग्रेस कमेटी के SC सेल की जानिब से उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया।
अन्ना भाऊ साठे की बरसी पर पार्टी की शहर जिला इकाई और एससी सेल के अहदेदारान ने जिला कलेक्ट्रेट से करीब अन्ना भाऊ साठे चौक पहुंचकर उनके कद्द-ए-आदम मुजस्समे पर फूल चढ़ाए और उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हुए अन्ना भाऊ की हयात व खिदमत को याद किया गया। इस मौके पर कांग्रेस एससी सेल के शहर जिला सदर डॉक्टर अरुण शिरसाट, जनरल सेक्रेटरी अनीस पटेल, मंजू लोखंडे, किशन राव सालवे, उत्तम दनके, श्रेष्ठ चौहान, सचिन लोखंडे, मिनहाज पटेल व दीगर कई कारकुनान और अहदेदारान मौजूद थे। मुकुंदवाड़ी इलाके से गुजर रही रेलवे लाइन पर ट्रेन की जद में आ जाने के सबब 2 दोस्त फौत हो गए। महलूकीन के रिश्तेदारों ने किसी साजिश को हादसे का सबब बताया। महलूकीन के नाम अनिल दादाराव औहाड़ और विशाल देवीदास दाभाड़े बतलाए गए हैं। हादसे की इत्तला मिलने पर पुंडलिक नगर पुलिस थाना के एहलकार मौके पर पहुंचे और लाशें पोस्टमार्टम के लिए घाटी अस्पताल भिजवाई गईं। महलूकीन के रिश्तेदारों ने इस वारदात को हादसा न होकर किसी तखरीबकारी का शाखसाना करार दिया है। पुंडलिक नगर पुलिस थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस हादसा या कोई दूसरी वजह दोनों पहलुओं से जाँच कर रही है। खानदेश के पाचोरा में एक एसटी बस और ट्रक के दरमियान तसादुम हुआ, जिसमें 15 मुसाफिर जख्मी हो गए। जख्मियों को पाचोरा के अस्पताल में शरीक किया गया है। तफसीलात के मुताबिक पाचोरा से मजाफात घोसला को मकामी जाने वाली बस सुबह 6:30 बजे घोसला से वापस पाचोरा के सफर पर रवाना हुई थी और उसने कमोबेश 25 किलोमीटर का फासला तय कर लिया था कि पाचोरा रोड पर वाक़ शक्कर कारखाने के करीब इस बस MH14 BT 1618 को पाचोरा की सिमत से आ रहे ट्रक MH19 CY 7521 ने जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बस में सवार 15 मुसाफिर जख्मी हो गए। पुलिस और मकामी साकिनान की मदद से जख्मियों को पाचोरा के अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां उनका इलाज जारी होने की इत्तला मिली है। जिला नांदेड़ के इलाके चौफाला में पुरानी रंजिश के सबब एक 26 साला नौजवान का कत्ल करने का मामला मंजर आम पर आया है। यहाँ रह के शहर नांदेड़ और जिले में मामूली तनाज़ात और रंजिशों और तू तकरार पर कत्ल खून की वारदात मामूल बन गई हैं। कदीम नांदेड़ के चौफाला में फिर एक कत्ल का वाक़या पेश आया है। गुज़िश्ता निस्फ शब के करीब 11 बजे पुरानी रंजिश के सबब 26 साला किरण माने नामी एक नौजवान को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने कत्ल के मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि कलीदी मुलजिम शिवा माने मुजरिमाना ज़हनियत का मालिक बतलाया गया है और उसके खिलाफ मुख्तलिफ पुलिस थानों में कई मामलात भी दर्ज हैं। तरी असना नांदेड़ में बढ़ते मुजरिमाना वाक़यात, कत्ल खून, डकैती और गोलीबारी की वारदात से पुलिस की दर्दसरी बढ़ गई है। किरण माने को क्यों मारा गया, इसकी मुकम्मल तफसीलात अभी सामने नहीं आई हैं। इतवारा पुलिस मजीद जांच कर रही है। काल रात्री 9 वाजताच्या सुमारास किरण माने म्हणून एक आपला रेकॉर्डवरील आरोपी आहे आणि त्या दुसरा एक रेकॉर्डवरील आरोपी त्याच्याच भावकीतील शिवा माने नावाचा, त्याने त्याच्या बायकोच्या बहिणीच्या मुलीसोबत असलेले त्या मैताचे प्रेमसंबंध या कारणावरून त्या दोघांमध्ये वारंवार भांडण होत होते आणि त्याच कारणावरून त्यांनी काल त्याला रात्री स्टॅबिंग केलेलं आहे। काय गुन्हा दाखल झालेला आहे? आरोपी अटक आहेत? 2 आरोपी विरुद्ध गुन्हा दाखल झालेला आहे। आरोपी अद्याप मिळून आलेले नाही, परंतु 2 तपास पथकं त्यांच्या मागावर आहेत। लवकरच आरोपी अटक होतील आणि 302 प्रमाणे गुन्हा दाखल झालेला आहे। पुंडलिक नगर पुलिस ने एक नकली PSI को गिरफ्तार किया है। इस बनावटी PSI पर दुकानदारों को डरा धमकाकर उनसे लाखों रुपयों की मालियत का सामान मुफ्त ले जाने का इल्जाम है। इस नकली फौजदार का नाम ज्ञानेश्वर नारायण देशमुख बतलाया गया है। उसने मोबाइल के ट्रू कॉलर पर खुद का नाम PSI शिंदे MIDC वालूज दर्ज किया था और वो शहर की मुख्तलिफ दुकानों पर जाकर अपने पुलिस होने की धौंस जमाकर बगैर पैसे दिए सामान ले जाया करता था। पुंडलिक नगर पुलिस थाना के मामून इंस्पेक्टर खटाने के स्क्वाड ने खुफिया मालूमात मिलने पर उसे गजानन नगर इलाके से गिरफ्तार कर लिया और जब सख्ती से उसकी तफ्तीश की गई तो उसने शहर के हार्डवेयर, प्लम्बिंग, बैटरी, इन्वर्टर जैसे मिन जुमला 2,04,000 रुपए की मालियत के सामान इस धोखाधड़ी और धौंस के जरिए हासिल करने का इकबाल जुर्म किया। पुलिस ने उसकी तहवील से मजकूरा सामान में से कमोबेश 2 लाख रुपए का सामान भी जब्त कर लिया है और उसके खिलाफ पुंडलिक नगर पुलिस थाना में मामला दर्ज कर लिया गया है। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं खत्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज।